Start. Yes. Very good evening, boys and girls. Good evening, sir. Very good evening, boys and girls. Good evening, sir. Yeah. So welcome you all to yet another session of CA Foundation Economics. CA Foundation Economics में हमने अब एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट का आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जहां अभी तक पहले लेक्चर में हमने प्रोडक्शन इस शब्द का डेफिनेशन जाना. प्रोडक्शन इज नथिंग बट creating something matter, creating something material or immaterial which has some utility. Creating or making something material or immaterial which has some utility, which has some utility is called as production. Production can also be understood as creation of utility. Production can also be understood as creation of utility. On the basis of creation of utility, we understood place utility, form utility, time utility, and personal utility. Lastly, we started discussion on factors which are essential to do the production, which are called as the factors of production. There are various factors of production, but out of all the various factors, the important one which we need to discuss and understand are land, labor, capital, and entrepreneur. Land, labor, capital, and entrepreneur. We have started discussion on the various factors of production, the most important 4 of them, out of which we have completed the discussion on land, features of land. We have completed discussion on labor, features of labor. So today we'll be starting with discussion of the remaining 2 points, that is capital and entrepreneur. Before I go ahead, does anyone have any sort of doubt in the first lecture? Yes, पहले lecture में किसी कोई doubt है? Does anyone have any sort of doubt in the first lecture? हाँ या ना? Right? Yes or no? ठीक है? So let's start discussion with the next head or next factor of production, that is capital. The next heading to start and discuss is capital. Okay? So what do you mean by capital? I hope you have already started knowing about the word capital in accounts. Yes, what is capital? Amount invested in business is nothing but your capital. Bhandwal. Right? Amount invested in business is your capital. Yes or no? Capital is the part of wealth. To be very correct, how do we define capital? Capital is the part of the wealth which is utilized for further production of wealth, or you can say capital is produced means of production or a man-made factor of production. Who made capital? Who made money? Man-made. Man-made money. Hence it is a man-made factor of production. Hence wealth is a broader concept and capital is a narrow concept. See, wealth of Ganesh is 10 lakh rupees. Ganesh has a wealth of 10 lakh rupees. He has money of 10 lakh rupees. So entire 10 lakh rupees is Ganesh wealth. Yes or no? What is wealth? Net assets minus liabilities is his wealth. Out of this 10 lakh rupees, 5 lakh rupees he is invested in his business. So can I say part of the wealth, that is 5 lakh rupees which he is invested in his business, is his capital? Now what is capital? Is capital 5 lakh rupees or is capital 10 lakh rupees? 10 lakh is wealth, 5 lakh is capital, part of wealth which is invested in business or which is utilized for further production of goods and services in business is nothing but your capital. So what is broader concept? Wealth. Wealth includes a part which is nothing but your capital. Capital is that part. Capital is that part of your wealth which is invested in business and utilized for further production of goods and services. Are we okay? Hi Anna? Yes or no? Now let's move on to the next set of discussion, that is types of capital. Types of capital हमें समझना है. टाइप्स ऑफ कैपिटल में पहला पॉइंट है फिक्स्ड कैपिटल.
पहला पॉइंट है फिक्स कैपिटल। ये इतनों सा कैपिटल वाला जो हेड है ना, इतनों सा कैपिटल वाला हेड है, दिस कवर्स हाफ ऑफ योर चैप्टर ऑफ सेक्रेटल प्रैक्टिस, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है उसके अंदर टाइप्स ऑफ कैपिटल जो है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, उसी के बारे में डिस्कशन है। सो टाइप्स ऑफ कैपिटल में पहला टाइप है फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल विच रिमेन्स फिक्स्ड irrespective of the level of output is known as fixed capital, or you can also define capital as fixed capital as that capital which is invested in capital। यहां पे थोड़ा डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस है, बदलाव है। फिक्स्ड कैपिटल is that one sum or amount of money which is invested in the capital assets of the business, which are invested in the capital assets of the business. Now what do you mean by capital assets? Capital assets are those assets which are purchased by the business and which are used over a period of time for the purpose of production of goods and services. Example, plant and machinery. Example, plant and machinery. अगर मैं फैक्ट्री बनाता हूं, फैक्ट्री बनाने के बाद जब मैं फैक्ट्री मशीनरी या प्लांट एंड मशीन परचेस करता हूं, डज एनी बिजनेस बाय प्लांट एंड मशीनरी ऑन डेली बेसिस? क्या हम फैक्ट्री बनाने के बाद प्लांट एंड मशीनरी रोज खरीदते हैं क्या? नहीं। शुरुआत में एक बार जब हमने फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई, हमारे बिजनेस का स्केल के हिसाब से हम एक ही बार प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे। ये जो प्लांट एंड मशीनरी में एक बार जब बिजनेस जब फॉर्म कर रहा हूं, बिजनेस जब एस्टेब्लिश कर रहा हूं, उस वक्त जो प्लांट एंड मशीनरी मैं खरीदने वाला हूं, एम आई गोइंग टू यूज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हाँ या ना? जब तक बिजनेस है तब तक फैक्ट्री के अंदर वो मेरी प्लांट एंड मशीनरी जो है मैं इस्तेमाल करने वाला हूं फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? सो दिस फैक्ट्री बिल्डिंग, सॉरी, फैक्ट्री machinery or plant and machinery is an example of capital asset. I purchase land for my business. I construct factory building for my business. I purchase a bus for transportation of labor in my factory. I construct a factory building. I purchase plant and machinery. All this investment of the business are into capital assets. Are into capital assets. Factory building, office building, bus, plant and machinery. Now these are all the points. These are all the points which we, or all the assets which we use in the business over a period of time. Yes or no? Which we use in business over a period of time. Do we use it just for a particular time, or we use it for a long period of time? Long period, over a period. So assets which are purchased and which are utilized over a period of time are called as capital asset. Capital asset can also be understood as fixed assets in accounts. I hope fixed asset पंकज सर ने आपको बताया. What are fixed assets? What are fixed assets? कोई एक जन हाथ ऊपर करो, अच्छे से बोलो. What are fixed assets? हाँ, over for a longer period of time. So can I say all fixed assets are capital assets? Are all fixed assets capital assets? Yes. So money invested with a fixed amount for fixed time once, it is called as fixed capital. So all this investment in the capital assets, all the capital invested in the capital assets of the business is nothing but your fixed capital. अब फिक्स कैपिटल यानी वो कैपिटल जो कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट होता है. इससे एक बात तो आप समझ चुके होंगे, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट, इज इट रिकरिंग और इज इट नॉन रिकरिंग? इज इट रिकरिंग और इज इट नॉन रिकरिंग? इज इट रिकरिंग और इज इट नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग. फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हुई फिर? नॉन रिकरिंग. क्या हम डेली बेसिस पे प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं? क्या डेली बेसिस पे फैक्ट्री बिल्डिंग बनाते हैं? क्या डेली बेसिस पे ऑफिस बिल्डिंग बनाते हैं? क्या डेली बेसिस पे व्हीकल्स खरीदते हैं? नहीं. सो दीज आर इन्वेस्टमेंट विच आर मेड वंस इन अ टाइम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है और जो हमारे कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, जो फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ नॉन रिकरिंग इन्वेस्टमेंट. सो फिक्स कैपिटल
is that capital which is invested in the capital assets of the firm or business and is a non-recurring investment. Is a non-recurring investment. Yes or no? Normally जब हम बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं तब हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ या ना? जब कभी भी हम नए से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो दैट टाइम वी विल रिक्वायर दिस फिक्स्ड कैपिटल. जब बिजनेस चल रहा है, जैसे अभी एसपीसी का बिजनेस चल रहा था, एसपीसी का बिजनेस चलने के बाद एक साल के अंदर जो रिस्पॉन्स, जो ट्रस्ट स्टूडेंट्स ने दिखाया, आई हैड टू एक्सपांड माई प्रीमाइसेस. सो कैन आई से आई रिक्वायर्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर माई एक्सपांशन पर्पस? Yes or no? Now let's say I have my own plans and actually have my own plans of starting up of our own college of commerce next year. So next year I will also be diversifying into college thing or college education services. Now again next year when I will be diversifying into another area or another stream of education or service, again I will be requiring fixed capital to set up and form or construct my own college. Yes or no? So can I say fixed capital is required at the start of the business? Fixed capital is required for the expansion of the business. Fixed capital is required for the diversification of the business. Yes or no? हाँ या ना? Right? लेकिन इसकी वांट कैसी है? रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? नॉन रिकरिंग. एग्जाम्पल मशीनरी, लैंड एटसेट्रा. टाइप्स ऑफ कैपिटल में दूसरा टाइप आता है वर्किंग कैपिटल. सेकेंड टाइप इज वर्किंग कैपिटल. दिस कैपिटल रिक्वायरमेंट इज अ रिकरिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू रन द डे टू डे बिजनेस. कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू रन द डे टू डे बिजनेस और कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज. मैं क्या बोल रहा हूं? कैपिटल which is required to run the day to day business or carry out the day to day business activities is called as working capital. मैंने फैक्ट्री तो बहुत बड़ी बनाई, उसमें प्लांट एंड मशीनरी लाई, खरीद कर लेकर आया हूं, उसके अंदर मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई है. तो फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए जो पैसा लगा वो मेरा क्या था? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. प्लांट एंड मशीनरी जो खरीद कर लाए हूं वो क्या है? मेरी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. लेट्स से ये जो फैक्ट्री मैंने बनाई है, ये जो मैंने फैक्ट्री बनाई है, यहां पर फर्नीचर बनता है. यहां पर क्या बनता है? फर्नीचर बनता है. क्या बनता है बेटा? फर्नीचर. अलग अलग तरह का फर्नीचर बनता है. अब फर्नीचर बनाने के लिए मुझे तरह तरह के रॉ मटेरियल और चीजों की जरूरत होगी. जैसे कंटिन्यूअस बेसिस पे फेविकॉल की जरूरत होगी, कंटिन्यूअस बेसिस पे लेबर की जरूरत होगी, कंटिन्यूअस बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, कंटिन्यूअस बेसिस पे प्लाईवुड की जरूरत होगी, कंटिन्यूअस बेसिस पे वुड की, नेल्स की, ऐसे बहुत सी चीजों की कंटिन्यूअस बेसिस पे, डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होगी. राइट? क्योंकि रोज अगर मैं 10 तरह के फर्नीचर बनाता हूं, उसे मार्केट में बेचता हूं, बेचकर जो पैसा आएगा फिर से मैं उसमें से और 10 नए फर्नीचर बनाऊंगा. तो प्रोडक्शन जो बिजनेस में होता है, is it a one time process or it is a daily process? Is it a daily process? Yes or no? और प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सी चीजें लगती हैं. So the capital which is required to fulfill the financial needs of the daily business or daily production of the business is nothing but your working capital. क्या बोलते हैं इसे हम? Working capital. वर्किंग कैपिटल को एक और नाम है सर्क्यूलेटिंग कैपिटल. क्या बोलते हैं इसे हम? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल. अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. मैं इसके बाद सवाल पूछूंगा. अगर मेरी फैक्ट्री की प्लांट की कैपेसिटी इतनी है कि वहां पे 10 अलग अलग तरह के फर्नीचर बन सकते हैं, सो 10 अलग अलग तरह के फर्नीचर बनाने के लिए जितनी भी चीजें लगेगी, लेट्स से उस सभी चीजों का जो मनी या कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपए है. तो मैं क्या करूंगा? बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा. 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मीटअप होने के बाद उसमें से 10 फर्नीचर बनाऊंगा. उस 10 फर्नीचर को मार्केट में बेचूंगा. मार्केट में बेचने के बाद उसमें से वापस से पैसे जनरेट करूंगा. पैसे जनरेट करने के बाद वापस से रॉ मटेरियल खरीदूंगा. रॉ मटेरियल खरीदने के बाद फिर से फर्नीचर बनाऊंगा. फिर से फर्नीचर बनाने के फिर से उसे बेचूंगा. फिर से मेरे पास पैसा आएगा. पैसा आने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा? उसे रॉ मटेरियल खरीद कर फिर से उसमें फर्नीचर. यानी क्या कर रहा है? मेरे पास कैपिटल है, इस कैपिटल को मैं रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर रहा हूं.
रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड, सोल्ड होने के बाद वो फिर से कैपिटल में कन्वर्ट होता है, कैपिटल फिर से रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल फिर से फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड फिर से सेल होते हैं, सेल होने वाले फिर से वो कैपिटल में कन्वर्ट होते हैं। सो ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के बिजनेस में गोल गोल घूम रहा है ना, है ना, इसीलिए वर्किंग कैपिटल को एक और नाम है सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं हम इसे? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वही पैसा रोज रोज बेसिस पे, डेली बेसिस पे घूमता रहता है, और जितना पैसा डेली बेसिस पे पैसा बिजनेस घुमाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए लगता है, दैट इज माय वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या लगता है तुम्हें, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? ज्यादा पैसा कहां लगेगा आपको? फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसा लगेगा या वर्किंग में? ज्यादा पैसा कहां लगेगा? फिक्स्ड। फिक्स्ड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल एसेट में करना है। कैपिटल एसेट नॉर्मली महंगे रहते हैं, रॉ मटेरियल 1 लाख रुपए का है लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए लगता है बेटा। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है या वर्किंग कैपिटल? फिक्स्ड। कभी भी क्वांटम में अगर हम देखें तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ये ज्यादा होती है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये कम होती है। और वर्किंग कैपिटल का एक फायदा है कि वो बार बार सर्कुलेट होते रहता है, वही पैसा घूम घूम कर आपके पास आते रहता है। हर बार जब हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें से प्रॉफिट जनरेट होगा तो धीरे धीरे मेरे पास पैसा भी क्या है, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? तो दोनों के कंपैरिजन में कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की ज्यादा होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ है ना? यस और नो? नेक्स्ट, रियल कैपिटल। कैपिटल which is invested in real assets of the company is called as real capital। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, कार, बसेस, इसमें जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है दैट इज माय रियल कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द रियल असेट्स इज कॉल्ड एज रियल कैपिटल। इसका एक और दूसरा कैपिटल हो सकता है मनी कैपिटल, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक और बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड ऑफ द बिजनेस is nothing but my money capital. That is not my real capital. That is not my real capital. Debtors जिनसे पैसे आने हैं, are they real capital? No, because that amount is with the debtors. That is not invested in the real assets of the company. Are you getting my point? They all are money capital. They are not a real capital. Capital invested in factory building, plant and machinery, buses, etc. Or you can say into the fixed assets or fixed assets of the company are nothing but your real capital. Human capital. The human resource of an organization is the human capital of an organization. किसी भी आईटी कंपनी के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा कैपिटल क्या है? वो इंजीनियर जो उनके पास काम करते हैं, वो जो इंजीनियर इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल विच इन्फोसिस कंपनी इज हैविंग। यस और नो? हाँ या ना? Next, tangible capital. What do you mean by tangible and intangible? Tangible means which we can touch and feel. Which we can see, touch and feel. Let's say I have bought a accounting software for rupees 1 lakh rupees. मैंने पूरा फी स्ट्रक्चर को ठीक तरह से स्ट्रक्चर करने के लिए, ऑटो रिसीट जनरेट करने के लिए, देशपांडे का काम करने के लिए 1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदा है। Now whatever capital I invest in this intangible assets will be my intangible capital। और बाकी सभी जो बेंच में, प्रोजेक्टर में, इस सॉफ्टवेयर में, इस कैमरा में, जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन में, बोर्ड में, एसी में, ये जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ ये क्या है? मेरा टैंजिबल कैपिटल। नेक्स्ट, इंडिविजुअल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। माय हाउस, माय प्लॉट, my factory, my office, this is my individual capital। मेरा खुद का जो भी पैसा है, मेरा खुद का जो भी कैपिटल है, that is my individual capital। Capital owned by a single individual, capital owned by a single individual is nothing but my individual capital। Capital which is owned by the society. Who are the owners of the roads? Collective all Indian citizens are owner of road। Who are the owners of gardens? We all are owner of Gopalacharya। Who are owner of dams? Every Indian citizen is owner of dam।
यस और नो? जितने भी सोशल एसेट्स हैं, जितनी सरकारी संपत्ति है, इसके मालिक कौन है? हम सब लोग मिलकर हैं, भारत का हर नागरिक है। हाँ या ना? हाँ या ना? सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल कैपिटल. Capital invested in these assets or social assets which are used by everyone and all are nothing but my social capital. Are you getting my point? Are you getting my point? So this is the classification of capital. अगला point क्या है? Capital formation. Capital formation means sustained increase in the capital. In other words, capital formation involves production of more capital goods like machine, tools, etc., which can be used for further production of goods. Higher rate of capital formation, higher would be the production of goods and services, and vice versa. Stages of capital formation: savings. The basic factor on which the capital formation depends is the ability to save. Capital formation is equal to function of savings. Higher the income, higher would be the savings, and vice versa. Mobilization of savings. Mobilization of saving refers to investment of savings in such a way which would facilitate the capital formation. Investment, the process of capital formation gets completed only when real savings get invested into real capital asset. Now understand this concept of capital formation. Capital formation is nothing but creation of capital assets. Is nothing but creation of capital assets, and we all know capital assets are used for further production of goods and services. Whenever a person has income, do we spend all his income or do we save a part of it? Out of this income, some is spent, which is nothing but our expenditure, and some part of is saved और सेविंग्स, राइट? हमारे जो सेविंग्स होते हैं, हम इस सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं. मोबिलाइज करते हैं यानी इसको इन्वेस्ट करते हैं. मोबिलाइज, सेविंग को मोबिलाइज करना यानी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना. जैसे आपके पापा अपनी सेविंग्स उनके LIC में इन्वेस्ट करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है. हमारी बचत, हमारी सेविंग्स को LIC में इन्वेस्ट करना या निवेश करना इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. इसे हम क्या कहते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. इसी हिसाब से जो इनकम होगा बिजनेस का, उस बिजनेस के इनकम में कुछ एक्सपेंडिचर होगा, कुछ सेविंग होगी. कुछ इनकम होगा, उस इनकम में से बिजनेस में हम कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे और कुछ सेविंग्स करेंगे. इस सेविंग्स को हम क्या करेंगे? मोबिलाइज करेंगे. क्या करेंगे हम? मोबिलाइज करेंगे यानी हम क्या करेंगे? इसे इन्वेस्ट करेंगे. ये जो हमारी सेविंग्स है, हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? कैपिटल असेट्स में. किस में इन्वेस्ट करेंगे हम? कैपिटल असेट्स से. कैपिटल असेट से क्या होगा? फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देयर विल बी फर्दर जनरेशन ऑफ इनकम, एंड अगेन देयर विल बी फर्दर सेविंग्स. सो अगेन दिस इज अ सर्कुलेटिंग प्रोसेस, जहां पे कैपिटल फॉर्मेशन इज अ सर्कुलेटिंग प्रोसेस. देखो, मैंने एक प्लांट बनाया, उस प्लांट में एक मशीन लाकर लगाई, उस मशीन से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, और उन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके मुझे कुछ प्रॉफिट, मुझे कुछ इनकम अकर हुई. ठीक है? उस इनकम में से मैंने कुछ एक्सपेंडिचर किया और कुछ पार्ट मैंने पैसा बचा लिया. ऐसे साल दर साल जब मैं मेरे पास पैसा बचाऊंगा तो मेरे पास एक अच्छी खासी रकम जम जाएगी, यानी जमा हो जाएगी. अभी जमा किए गए रकम को मुझे मोबिलाइज करना है, इन्वेस्ट करना है. तो मैं सोचूंगा कि ऑलरेडी मेरे पास एक मशीन लाइन है तो इतना मुनाफा है. अगर मेरे पास 2 मशीन लाइन हो, अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है. तो मैं अपने सेविंग्स को मोबिलाइज करता हूं, अपने सेविंग को कैपिटल असेट में इन्वेस्ट करता हूं और कैपिटल असेट को फॉर्म करता हूं और एक और मशीन बिजनेस में लाता हूं. अब एक और मशीन बिजनेस में लाने से बिजनेस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है या ना? बिजनेस में प्रोडक्शन बन गया तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा. अनडाउटेडली प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, एक मशीन और बढ़ाने की वजह से मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली मेरी सेविंग्स भी बढ़ेगी. सेविंग्स बढ़ेगी तो फिर मैं और सेविंग्स जमा कर पाऊंगा, और सेविंग्स जमा कर पाऊंगा तो फिर से मैं उसे मोबिलाइज करूंगा, फिर मैं और तीसरी मशीन लूंगा, फिर से तीसरी मशीन से और प्रोडक्शन बढ़ेगा. बात समझ में आ रही है क्या? सो एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी मशीन से तीसरी मशीन, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. क्या कहते हैं बेटा इसे हम? कैपिटल फॉर्मेशन. क्या कहते हैं हम? कैपिटल फॉर्मेशन.
इसलिए यहां पर क्या बोला है, कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फंक्शन ऑफ सेविंग्स. I told you x is a function of y. So x is a dependent variable, y is a independent variable, function of. So जो equal to के पहले है वो क्या है, वो क्या है, dependent variable. So capital formation is a dependent variable, saving is a independent variable. As we all know, capital formation is dependent on savings. अगर savings होगी तो फिर से कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो कैपिटल असेट्स में हम इन्वेस्ट करेंगे. लेट्स से बिजनेस में जितना एक मशीन में प्रोडक्शन था वो पूरा की पूरा खर्च हो गया. देयर इज नो सेविंग. एज देयर इज नो सेविंग, विल आई थिंक ऑफ एक्सपांडिंग इनटू वन मोर मशीन? यस और नो? सो कैन आई से कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल टुगेदर डिपेंडेंट ऑन सेविंग? हाँ या ना? हाँ या ना? सो व्हाट इज दिस? कैपिटल फॉर्मेशन इज फंक्शन ऑफ सेविंग्स. आर वी ओके? कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आया? सो कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट क्रिएटिंग ऑफ कैपिटल असेट्स विच कैन यूज और विच कैन बी हेल्प्ड इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. अभी ओके? अभी ओके? चलो यहां पर हमारा डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट हेड, दैट इज कैपिटल एंड्स. अभी हम एंटरप्राइज का डिस्कशन करेंगे. आज थ्योरी खत्म करेंगे, कल से प्रोडक्शन फंक्शन और मेन लाइन डिस्कशन शुरू करेंगे. ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट हियर इज एंटरप्रेन्योर. बिजनेस इज आउट ऑफ आइडिया. बिजनेस आर सेटअप आउट ऑफ आइडिया. फेसबुक का आइडिया किसका था? मार्क जुकरबर्ग. ओके. अमेजॉन? अमेजॉन? अरे रे रे रे, अमेजॉन? रिलायंस? मुकेश धीरूभाई अंबानी. नेक्स्ट एसपीसी. अच्छा ठीक है. तो अब देर आर बिजनेस, बट दिस बिजनेस आर आउट ऑफ एन आइडिया. Undoubtedly, there are n number of business ideas in the world, but ultimately, a business is set up through a business idea, only through a person who is called as the entrepreneur. Who is called as entrepreneur. Who is called as entrepreneur. किस प्रकार से? Entrepreneur. Who is called as entrepreneur. So, entrepreneur is that person who is ready, who is willing to take the risk. I was willing, I was ready to take the risk. So let's start with something, with a vision where I want to provide career oriented education. Let me fail or let me succeed will be a different part, but I got to take a risk. I had a business idea, I had an idea, so I started with SPC. Same way, it starts with Mark Zuckerberg, who started with Facebook. अरे बोलो रे. Who started with Facebook. He had that idea that there are people who want to get socially connected with their friends whom they didn't meet in their further life after a phase of their childhood, and they want to get connected socially with everyone. He knew the day were coming when Diwali will be celebrated in a family where every person in the family is sitting with their own phone and wishing on the family group Happy Diwali to everyone. He knew this was coming. He knew this was coming when everyone was sitting in the class, not trying to talk to his friend and discuss what is going in the class, rather than sending snaps and trying to form a streak. He knew this was coming. He had that idea. He knew people will socialize and people will spend so much of his time on that particular app. He had that business idea. He had that idea. He implemented that idea and founded Facebook. See the office of Facebook, where he started the company with just a small desk and a computer in his own room. Now just see the campus or the office size of Facebook. आंखें घूम जाएगी. So that particular organization, Facebook, has started with a business idea, and this business idea was of Mark Zuckerberg, who is the entrepreneur.
who took the responsibility of the business, who had that idea, who implemented the idea, who was ready to test the risk of the business and started with the business, and ultimately whatever good or bad of the business is, it is owned and controlled by Mark Zuckerberg. Yes or no? Same happens with me. Whatever good, bad or whatever position I have today, it's only out of the risk and whatever ideology or business idea I had along with both of us. Yes or no? Hi na, right? So business is set up with a business idea, and business idea is brought by एंटरप्रेन्योर. अभी ओके? अ पर्सन, अब मुझे बोलो, जमीन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, लेकिन इन सभी फैक्टर्स को एक साथ लाकर प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर. कौन करता है? एंटरप्रेन्योर. मेरे पास जगह है, मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरे पास लेबर भी है, मेरे पास स्टाफ है, टीचिंग है, सब लोग, लेकिन सभी लोगों को एक साथ लाकर एक क्लासरूम में एक एसपीसी बनाकर आगे चलना is my particular thing, where I have all brought all the factors of production together at this particular Devi complex and started with production of goods and services. So this particular thing is done by the entrepreneur. है ना? गणेश ने अगर फैक्ट्री बनाई तो फैक्ट्री के अंदर लेबर तभी काम करेगा जब गणेश उसे इंस्ट्रक्शन देगा, और जैसे जैसे गणेश चाहेगा वैसे ही पैसे का इस्तेमाल होगा, और गणेश जैसे चाहेगा वैसे ही लैंड का यूटिलाइजेशन होगा. हर चीज जैसा गणेश चाहेगा वैसे ही होगा. है या ना? गणेश अगर पापा की खेती करता है, so Ganesh will be the entrepreneur who will be looking out for this agriculture activity. So he has to take the decision कि 50 एकड़ में क्या करना है. So land का क्या करना है गणेश तय करेगा, कैपिटल कितना लाना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये गणेश तय करेगा, और लेबर को क्या काम देना है ये भी कौन तय करेगा? गणेश. हाँ या ना? So ultimately who brings in all the factors of production together to produce the goods and services is the entrepreneur. हाँ या ना? Who brings all the factors of production together to produce the goods and services with the help of his entrepreneur skills. और entrepreneur ये जो चीजें करता है, he does it out of his skills. Whatever management you see of SPC out of skills I have, these skills are nothing but called as a entrepreneur skills. मेरी नहीं, आपके पिताजी जिस तरह से उनका खुद का बिजनेस चलाते हैं, those are nothing but the skills and which are called as the entrepreneur skills. Right? जैसे श्रद्धा का गैस का बिजनेस है, तो उनके पिताजी जो गैस का बिजनेस चलाते हैं, he is the entrepreneur. जो वो बोलते हैं उसके हिसाब से बिजनेस चलता है. मान लो पिताजी बिजनेस पे नहीं जाए, दुकान पे बैठे ही नहीं और बिल्कुल देखे नहीं ऑफिस में क्या है, ना कोई कहीं गैस सिलेंडर पहुंचाएगा, ना किसी को कुछ मिलेगा, ना कुछ होगा. है ना? बिजनेस तभी चलेगा जब श्रद्धा के डैड खुद वहां जाकर देखेंगे. आया ना? राइट? अल्टीमेटली इट इज द एंटरप्रेन्योर who brings all the factors of production together and runs the entire business. And this is done out of the skills he has, entrepreneur skills he possesses, right? For the motive of profit, and is known as एंटरप्रेन्योर. और जो भी एंटरप्रेन्योर अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके जो कुछ भी ये काम करता है, उसे एक ही उद्देश्य होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट आए. एंड एंटरप्रेन्योर कैन ऑल्सो बी नोन एज ऑर्गेनाइजर, रिस्क टेकर और मैनेजर. ऑर्गेनाइज मतलब सारी बिजनेस आइडिया ओरिजिनेट किससे होती है? एंटरप्रेन्योर से. सारे बिजनेस की रिस्क कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर. और सारे बिजनेस को मैनेज कौन करता है? एंटरप्रेन्योर. सो इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजर, रिस्क टेकर और मैनेजर. Now, what are the different functions of an entrepreneur? Whenever a person is an entrepreneur of a business, what are the different functions he discharges as being the entrepreneur? First, initiating the business enterprise and resource coordination. I had initiated this idea of SPC, so I had to coordinate and start with the SPC classrooms. Mark Zuckerberg had the idea of Facebook, so he initiated the primary Facebook and the primary app, and he started with all the working and things. So ultimately, if you set up your business, you will be the first person who will be initiating the start or the business. Hi or na? Yes or no? Right? Risk bearing or uncertainty bearing. Whatever risk will lie in the business. क्योंकि ऐसा थोड़ी है बिजनेस करे तो प्रॉफिट ही होता है, कभी कभार बिजनेस के साथ साथ नुकसान भी हो सकता है. लेट्स से लास्ट ईयर आई इनिशिएटेड दिस बिजनेस एंड ड्यू टू कोविड 2 साल तक का लॉकडाउन लग गया. लॉकडाउन कितना लग गया? 2 साल तक का. और 2 साल तक क्लासरूम, स्कूल्स कुछ नहीं खुला, सब जन घर में बैठे. मोदी जी बोल रहे अभी अगली बार खोलेंगे, अगली बार ही खोलेंगे. ऐसे 2 साल के लिए अगर मोदी जी अगर भारत बंद कर देते हैं तो मेरा ये बिजनेस आइडिया प्रॉफिट में जाता या लॉस में जाता? बट ऑब्वियस लॉस में जाता. बट ऑब्वियस किस में जाता बेटा? लॉस में. सो आई हैड टू बियर दैट लॉस. सो आई हैव द रिस्क. आई एम द रिस्क बियरर. आई एम द रिस्क बियरर. राइट? नेक्स्ट, इनोवेशन.
innovation, making innovations and bringing innovations in the business is again the responsibility of the entrepreneur. Again, simple realistic example, whatever technology you are seeing now, where you are able to see the virtual videos back onto your mobile phone, onto our SPC app, is the innovation I try to bring in my own business, where you particularly feeling कि नहीं हमारी क्लास परभनी क्या औरंगाबाद में मराठवाड़ा में सबसे बेहतर है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द इनोवेशंस इन टीचिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय फैकल्टी is nowhere seen by us till now. Did you see these things in your schools? Did you see elsewhere in your classes or anywhere? No. So this is an innovation which I have brought. Whatever innovations I have brought into my business are giving me an advantage or an edge over my competitors in the market. Hi Anna. Hi Anna. Right? Now this is again responsibility of the entrepreneur. It is the entrepreneur who is responsible for making the innovations of the company. इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है. मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, गरीब आदमी. बड़े बड़े एग्जाम्पल में नोकिया है, याहू है. इफ यू रिमेंबर नोकिया in 2000, around 90s to 2000, earlier part of 2000 until Android was launched, Nokia mobile phone was the biggest market holder for mobile phone. Was the biggest market holder of mobile phone. Nokia का मोबाइल मार्केट में शेयर was around 95%. कितना? 95%. इंडिया के मार्केट में 100 मोबाइल बिकते थे तो उसमें से 95 मोबाइल नोकिया कंपनी के बिकते थे. बाद में इनोवेशन आया एंड्रॉइड. तो जैसे इनोवेशन आया, इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ नोकिया to also make certain innovations and adopt the new Android systems. They neglected this innovation. Ultimately, one time 95% market shareholder Nokia company was ultimately sold. इतना innovation किसी भी business में अहमियत रखता है. Who started with mail services? Who started with mail services? Email. ईमेल सर्विसेज किसने चालू की? याहू. यूज स्नैपचैट? नहीं क्या बोल रहे हैं, क्लास में बैठे बैठे करते हैं. यूज स्नैपचैट? यस. यूज फेसबुक? यस. यूज इंस्टाग्राम? यस. यूज ऑल द मैसेंजर सर्विसेज. बट हु स्टार्टेड द मैसेंजर सर्विसेज? हु स्टार्टेड मैसेंजर सर्विसेज? आई स्टिल रिमेंबर माई CPT days when we used to go and sit on a cafe and used to chat over a Yahoo Messenger. Friendly. We used to sit on an internet cafe and we used to chat over Yahoo Messenger. This concept over the chat was first time brought by Yahoo. Email concept was first brought by Yahoo. Yahoo ने मेल स्टार्ट किया, Yahoo ने मैसेंजर स्टार्ट किया. Ultimately Yahoo got sold. So what do you think is the problem? The problem was innovation. Ultimately जिसने मैसेंजर या चैट सिस्टम चालू की याहू, अगर वो उसमें इनोवेशन करते तो आज हर बड़ा सोशल मीडिया ऐप किसका होता? याहू का. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके एंटरप्रेन्योर ने इनोवेशंस नहीं किए. सो इनोवेशन इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? चलिए. सो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. These are the major functions of entrepreneur. Now, while discharging the functions in an enterprise, अपने business में अपने functions discharge करते वक्त एक enterprise में कुछ objective और कुछ constraints होते हैं. As an entrepreneur, when I am trying to discharge my functions, I have certain objectives of my business. I have certain objectives of my business in my mind and I have certain constraints in my mind. मेरे बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो मेरे दिमाग में है और मेरे बिजनेस के कुछ कंस्ट्रेंट्स है जो मेरे दिमाग में है. मेरे बिजनेस का आज ये कंस्ट्रेंट है कि मैं 200 स्टूडेंट का अभी इस प्रीमाइसेस में एक साथ क्लास नहीं ले सकता. ले सकता हूं क्या? नहीं, मेरे पास उतनी बड़ी क्लासरूम है नहीं. सो स्ट्रेंथ अबव 100 इज अ कंस्ट्रेंट फॉर मी. ऑब्जेक्टिव क्या है?
Objective is to expand this organization and ensure more and more admissions. Yes or no? Hi Anna. Yes or no? Right? So whenever an entrepreneur discharges various functions, whenever an entrepreneur discharges various functions in the business, whenever an entrepreneur discharges various functions in a business, he has to keep in mind certain objectives of the enterprise, that is of the business, and also some constraints. Hi Anna. Ha Yana. Right? Now let's try to look into the various objectives of the business. What is the objective of business? What is the objective of business? What do you think is the main objective of the business? What is the main objective of the business? Yes, everyone. What is the main objective of business? Profit. Okay. We are wrong. The organic or basic objective of any business is survival. Ultimately, whenever you start with the business, you first need to survive in the market, because there is lot of competition in the market. See, हमारा प्रेम जो है एक फैशन स्टोर यानी खुद के एक कपड़े की दुकान खोलने में इच्छा रखता है. He had a business idea of starting his own cloth store. कितने कपड़े की दुकान है परभनी में ये तो तुम्हें पता है? 100 से ज्यादा है. 100 से ज्यादा है क्या? राइट. सो 100 से ज्यादा दुकानों के मार्केट में जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, डे वन में जो हमारा बिजनेस इसने स्टार्ट किया है, बस नारल अभी फोड़ दिया और इमीडिएटली डे वन से बोल रहा मेरे को प्रॉफिट चाहिए. अगर ये डे वन से ही दिमाग में थॉट लेके बैठा है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए अंबर, तो फिर ऐसे सिनारियो में कॉम्पिटिटर क्या करेगा? कोई एक कॉम्पिटिटर जो है वो कॉम्पिटिटर अपने दुकान में डिस्काउंट शुरू कर देगा. डिस्काउंट देखते ही जो लोग इनके पास जाने वाले थे वो उस कॉम्पिटिटर के दुकान में जाने लगेंगे. तो जो ग्राहक इनके यहाँ पे आने वाले थे वो इनके पास आएगा नहीं, सीधा उसके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएगा. इसके पास कोई ग्राहक आएगा नहीं तो ये खर्चों में माइनस होता चला जाएगा, ये नुकसान करता जाएगा. और जैसे जैसे कस्टमर इससे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन के चलते, नुकसान के चलते ये मार्केट से बाहर फेंक दिया जाएगा. अल्टीमेटली जब कभी भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो एक बात समझ लो, कोई भी बिजनेस एक दिन में सेट नहीं होता. ऐसा नहीं दुकान लगाई, पूजा करी, गले पे बैठे, चलो प्रॉफिट कमाना चालू, ऐसा कोई भी बिजनेस दुनिया में नहीं है. स्पेकुलेशन की बात अलग है. स्पेकुलेशन इज अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट बिजनेस. तेजी मंदी का बिजनेस नहीं बात कर रहा हूं मैं. नॉर्मल जहां पे प्रोडक्शन करके जब हम प्रॉफिट कमाने की बात करें, वी वांट टू प्रोड्यूस समथिंग. मेरे पास अभी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिखते हैं तुम्हें, लेकिन अल्टीमेटली क्या एक ही दिन में आएगा? ये 1 साल की मेहनत, रिजल्ट्स और बाकी सब चीजों को देखकर फिर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अल्टीमेटली मैं डे वन को आकर ही बोलता प्रॉफिट, मुझे 2 लाख रुपए फीस चाहिए, तो कोई मेरे पास आता? मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मैं ज्यादा फीस चार्ज करूंगा, और ज्यादा फीस चार्ज करूंगा तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा, तो ही मैं बिजनेस करूंगा. मैं आते ही बोला परभनी में मुझे क्लास लेना है, 11th की फीस 1 लाख, 12th की फीस 2 लाख, फाउंडेशन की फीस 2 लाख, 5 लाख रुपए में फीस लूंगा. माई इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट. मोर फीस मोर प्रॉफिट. विल आई डू बिजनेस ऐसे? अगर ऐसे बिजनेस किया तो एसवीसी चालू होते ही खत्म हो जाएगी, है ना. सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्केट में जब स्टार्ट किया है सबसे पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में दूसरे मेरे कोई कंपटीटर्स है, वो क्या फीस चार्ज कर रहे हैं, उस फीस में वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं. अगर मैं उसी ब्रैकेट में अगर मेरी फीस रखता हूं तो मुझे कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत होगी टू मेक माई बिजनेस और सर्वाइव थ्रू माई कॉस्ट. बिकॉज अल्टीमेटली एवरी बिजनेस हैज टू इनकर कॉस्ट. जैसे हर बिजनेस के कॉस्ट होते हैं, जो होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एक होते हैं वेरिएबल कॉस्ट. ये अभी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाऊंगा. फिक्स्ड कॉस्ट यानी वो खर्चे चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो, वो खर्चे आपको इनकर करने पड़ते हैं. लॉकडाउन में कोई भी स्टूडेंट क्लासरूम में आया नहीं. आए क्या आप? नहीं आए. तो मैं क्या घर मालिक को बोल सकता हूं लॉकडाउन में स्टूडेंट क्लास में नहीं है तो मैं आपको किराया नहीं दूंगा? किराया तो देना पड़ेगा, चाहे क्लास चालू रहो चाहे क्लास बंद रहो. इसका मतलब रेंट इज माय फिक्स्ड कॉस्ट. रेंट इज माय फिक्स्ड कॉस्ट.
अल्टीमेटली जब कभी भी आप बिजनेस में आते हो तो शुरुआती दौर में आपके कॉस्ट ज्यादा होते हैं, आपका रेवेन्यू कम होता है. यू कांट स्ट्रेट अवे कम इनटू बिजनेस से आई वांट टू अर्न प्रॉफिट. अल्टीमेटली फर्स्ट यू हैव टू सेट अप अ बिजनेस. You have to try to survive in the market. You have to try to survive in the market. Survival के लिए मुझे पहले क्लास स्टार्ट करना होगा, मार्केट में मेरे कंपटीटर्स को कंपटीशन देना होगा. कंपटीशन के चलते हुए मुझे पहले इतना इंश्योर करना पड़ेगा कि जितना मेरा खर्चा है उतना तो भी मैं फीस के रिसिट्स में से निकाल पाऊं. जितना मेरा खर्च है उतना तो भी मैं मेरे क्लास के फीस में से निकाल पाऊं. जब मैं मेरा खर्चा निकाल पाऊंगा धीरे धीरे मैं मार्केट में स्टेबल रहूंगा, धीरे धीरे मेरे पास एडमिशंस बढ़ेंगे और धीरे धीरे मेरी फीस की कलेक्शन बढ़ेगी और फिर जाकर प्रॉफिट होता है. तो जब कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, जब कभी भी कोई बिजनेस होता है तो उसका पहला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल. पहला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज का क्या है? सर्वाइवल. अगर सर्वाइव कर लिए तो प्रॉफिट होगा. अगर कंपटीशन में आते ही 1 साल के अंदर क्लास अगर बंद हो गई तो सर्वाइवल नहीं तो प्रॉफिट होगा क्या? नहीं. होटल आपने नई नई स्टार्ट कर ली लेकिन 6 महीने में ही बंद हो गई कंपटीशन के चलते, तो क्या प्रॉफिट कर पाओगे? 6 महीने में कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाता है क्या? नहीं कमाता. कमाता क्या? नहीं. इसका मतलब पहले आपको होटल स्टार्ट करनी होगी, कंपटीशन में क्वालिटी देनी होगी, मार्केट में टिकना होगा, मार्केट में सर्वाइव करना होगा. और जैसे धीरे धीरे आपके होटल का नाम होगा, ओवर द पीरियड आपके पास कस्टमर्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके होटल को विजिट करेंगे और फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बनता है. सो ऑर्गेनिक बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का होता है सर्वाइवल. क्या होता है? सर्वाइवल. समझ में आया? सो द मेन ऑब्जेक्टिव, वी आर नॉट लर्निंग अकाउंट्स, वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स बहुत सी चीजों में अलग अलग चलते हैं. आगे जब मैं अभी अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट बताऊंगा तब उसमें समझ में आ जाएगा. प्रॉफिट इस शब्द का मतलब इकोनॉमिक्स में अलग है, प्रॉफिट इस शब्द का मतलब अकाउंट्स में अलग है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो दिखता है वो प्रॉफिट है, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस में निकालते हो. इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं होता. जो रिसोर्सेस आपने अपने बिजनेस के इस्तेमाल किए हैं, अगर उन रिसोर्सेस को और कहीं अगर इस्तेमाल करते, वहां से आपको क्या प्रॉफिट बन सकता था, वो खर्चा भी उसमें इंक्लूड करना पड़ता है. Because economics is all about utilization of resources. Economics is all about utilization of resources. Don't worry, आगे बताऊंगा मैं आपको. अभी के लिए ये समझो, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है बेटा? सर्वाइवल. अगर मार्केट में टिके, मार्केट में सर्वाइव किए, तब जाकर आगे प्रॉफिट होगा. हाँ या ना? यस और नो? सो द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल. प्रॉफिट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी enterprise, but the organic objective states that survival is the basic objective. An enterprise cannot earn profit if it is unable to survive. Survival here means enterprise should be able to recover at least the cost incurred in the production of goods and services. शुरुआत में मैंने सिर्फ इतना तो भी इंश्योर करना है कि टीचर्स का पगार निकल रहा है, रेंट निकल रहा है, देशपांडे सर की सैलरी निकल रही है, लाइट बिल निकल रहा है, इतना तो भी निकाल लूं, उतनी तो भी फीस मेरे पास जमा हो जाए. डे 1 से बोल रहा प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. प्रॉफिट आएगा क्या? पहले शुरुआत में बिजनेस सेटअप करो, मार्केट में टिको, सर्वाइव हो. सर्वाइव करने के लिए अपने खर्चे निकालो, खर्चे में निकालोगे तो मार्केट में सर्वाइव करोगे और अपने आप धीरे धीरे फिर बाद में सेल बढ़ेगा, आपकी फीस कलेक्शन बढ़ेगी और धीरे धीरे बिजनेस में फिर प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा. वंस अ एंटरप्राइज इज अश्योर्ड ऑफ इट्स सर्वाइवल, इट विल एम एट प्रॉफिट ग्रोथ एंड एक्सपांशन. अब जाकर जैसे आपकी क्लास का एडमिशन हुए, जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास आई है, आई एम अश्योर्ड कि मेरा मार्केट में सर्वाइवल हो जाएगा. मुझे यहां से अभी आगे 2-3 साल तक एडमिशन हो ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जितना भी फीस कलेक्शन होगा इसमें मेरा आने वाले 3 साल का खर्चा मैं निकाल सकता हूं. अब आने वाले 3 साल में जब मुझे पता है मैं मेरा खर्चा बड़े आसानी से निकाल सकूंगा, तो नाउ आई विल टारगेट माय एक्सपांशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नेक्स्ट बैच ऑनवर्ड्स माय टारगेट वुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. अब मैं ये नेक्स्ट बैच से क्यों टारगेट कर सकता हूं? बिकॉज आई एम अश्योर्ड ऑफ माय सर्वाइवल दिस ईयर. आई एम अश्योर्ड ऑफ माय सर्वाइवल दिस ईयर. इज इट ओके? Is it okay? Yes or no? Yes or no? The organic objective is rightly defined by R.L. Morris in his book The Economic Theory of Managerial Capitalism in 1964. The theory of Morris is focused on balanced growth. The theory of big firms where the company ownership is different from the management also talks about organic objective. ये सारे इकोनॉमिस्ट है, इन सभी का यही कहना है कि ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का यही है, that is survival.
As the management focuses on survival and shareholders on profit, hence the theory puts a proper link between those two objectives of survival and profit. Right? शेयर होल्डर क्या चाहता है? प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा उसे, हाँ या ना? राइट? लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये प्रॉफिट का मोटिव कब फुलफिल कर पाएंगे? जब वो सर्वाइव करेंगे. जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल स्ट्राइव फॉर survival and the shareholders will strive for profit, and both ways when we keep a balance, then our organization can grow. Are we okay? Are we okay? Next, after attaining the organic objective of an enterprise, then an entrepreneur will target his next objective, that is economic objective. Now what is this economic objective? Making profits. Making profits. First survival, then profit. This form is one of the very important objectives of an enterprise, that is profit objective. This objective emphasis on pricing policy so as to maximize the profit. Profit can be classified as economic profit and accounting profit. Profit को हम economic profit और accounting profit इन दोनों तरीके से समझ सकते हैं. Economic profit is equal to total revenue minus total cost. प्रॉफिट कैसे होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज माय प्रॉफिट. वट एवर इज माय रेवेन्यू, चीजें बेचकर जितना भी पैसा मेरे पास कलेक्ट होता है, दैट इज माय रेवेन्यू. और जितना भी कॉस्ट मैं इनकर करता हूं, दैट इज माय कॉस्ट. राइट? सो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट. इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. नोट, total cost under economic profit includes implicit cost and explicit cost. Explicit costs are those costs which are account and we pay for, and implicit costs are the opportunity cost lost and are not accounted for, paid for. Accounting profit is equal to total revenue minus total cost, but accounting profit includes only explicit cost. Now let's try to understand the concept. जो अभी बता रहा था मैं कि इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट कैसे अलग है और अकाउंट्स में प्रॉफिट अलग कैसा है. अकाउंट्स का जो प्रॉफिट होता है बेटा, वो हम प्रॉफिट कहां से निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिखता है, दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस. हाँ या ना? हाँ या ना? सो द नेट प्रॉफिट वी ड्रॉ आफ्टर अकाउंटिंग फॉर all the transactions which we have incurred and paid for, all the expenses which we have incurred and paid for, all the revenues we have generated out of the sale, that revenue minus profit, that profit showed in the net profit of the profit and loss account is my accounting profit. Is my accounting profit. But accounting profit is equal to total revenue minus total cost. Total revenue minus total cost. But total cost here includes only one term, that is explicit cost. That is explicit cost. Explicit cost means cost which we actually incur and pay for are my explicit cost. अभी ये क्लास चलाने के लिए मुझे यहाँ रेंट पे करना पड़ता है. ये क्लास चलाने के लिए मुझे यहाँ पर रेंट पे करना पड़ता है. ये क्लास चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, सैलरी देनी पड़ती है, देशपांडे सर की सैलरी है, प्रिंटिंग है, सब चीजें हैं. अब जितना खर्चा मैं क्लास को चलाने के लिए कर रहा हूं, जिसे मैं अकाउंट करूंगा, जिसे मैं खुद पे करूंगा, जिसे अकाउंट करूंगा और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस जो है क्लास के बनाऊंगा, और हमारे क्लास की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा उसमें जो नेट प्रॉफिट दिखेगा वो होगा हमारे क्लास का, वो होगा हमारे क्लास का अकाउंटिंग प्रॉफिट. क्या होगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट. So explicit costs are those costs which are actually incurred and paid for. जो खर्च हम एक्चुअल में इनकर करते हैं और पे करते हैं, जो खर्चा हम एक्चुअल में इनकर करते हैं और पे करते हैं, are my explicit cost. Are my explicit cost. And accounting cost includes only explicit cost. Now there is one more term, that is economic profit. Economic profit is equal to total revenue minus total cost. But my dear friends, total cost under economics or economic cost includes implicit cost and explicit cost. Right? Now understand what is implicit cost. Explicit cost क्या है, समझ में आया?
मेरा बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा एक्चुअल में इनकर कर रहा हूं, पे कर रहा हूं, जिसकी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, वो मेरा क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज अकाउंटिंग कॉस्ट. It can also be understood as accounting cost. Cost we actually incur, pay and account for. Yes or no? हाँ या ना? Right? Now let's try to understand what is implicit cost. Please थोड़ा ध्यान दो. Implicit cost is that cost which we don't actually incur, which we don't actually pay, but we don't actually account for, but are those costs which refer to the opportunity cost lost for the utilization of resources. For the utilization of resources. Let's say ये पूरी क्लास बनाने के लिए मुझे 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी है. So I have invested this 30 lakh rupees into this class business. I had one more opportunity of investing this 30 lakh rupees into fixed deposit where I could earn the interest of 6% on same. So 30 lakh का 6% कितना होता है? 30 lakhs का 6% कितना होता है? 60,000 multiplied by 3, 1,80,000. Now this 1,80,000 मेरा 30 लाख रुपए जो है मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. अगर मैं ये क्लास का बिजनेस नहीं करता तो एक 30 लाख रुपए कहां इन्वेस्ट करता? फिक्स डिपॉजिट में. फिक्स डिपॉजिट से मुझे कितना पैसा आ सकता? 1,80,000. क्या आ सकता था? 1,80,000. But because I have invested this 30 lakhs into my class business, have I lost the opportunity of earning interest of 1.8 lakh? Yes or no? Yes or no? This is my implicit cost. मैंने मेरे कैपिटल के रिसोर्सेस को बिजनेस में यूटिलाइज किया है. ये मैं बिजनेस में यूटिलाइज कर रहा हूं, इसीलिए मैं इसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. अगर मैं ये फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता तो मुझे 1.8 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिल सकता था. क्या मिल सकता था? 1.8 लाख रुपीस का मिल सकता था. हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? सो ये जो मिल सकता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच आई हैव लॉस्ट इज नथिंग बट माय इम्प्लिसिट कॉस्ट. ये बिजनेस मैंने चालू किया है, एंटरप्रेन्योर मैं हूं, रिस्क बियरर भी मैं हूं. लेट्स से मेरे पास स्वप्निल सर ने एक ऑफर रखा कि दिनेश सर तुम पुणे आ जाओ, पुणे में हमारे क्लास में आकर पुणे ऑफिस में पढ़ाइए, आप यहां आकर पढ़ाइए, मैं आपको महीने की 1 लाख रुपए सैलरी या तनख्वाह दूंगा. मैं आपको 1 लाख रुपए की सैलरी या तनख्वाह दूंगा. लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे परभनी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है, मैं परभनी में ही रहूंगा और परभनी में रहकर ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं यहां खड़े रहकर तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं. Have I lost the opportunity of earning salary of rupees 1 lakh rupees per month by working in Pune? Yes or no? Because I have invested my labor and time here in Parbhani. Being an entrepreneur, I could have worked there, earned a salary of 1 lakh, that is 12 lakh rupees. So I have lost an opportunity of earning 12 lakh rupees as salary. Yes or no? हाँ या ना? क्या दायमा जी? मुंदड़ा? I have lost the opportunity of earning this salary of 12 lakh rupees, of earning the salary of 12 lakh rupees. So opportunity lost of earning the salary of 12 lakh rupees. Opportunity lost of earning the salary of 12 lakh rupees is nothing but my implicit cost. समझने की कोशिश करो. लेट्स से ये जो प्रीमाइसेस है दैवी कॉम्प्लेक्स का, ये जो ऊपर का फ्लोर है, ये मेरा खुद का ओन प्रीमाइसेस है. ये मेरा खुद का ओन प्रीमाइसेस है. क्योंकि मैं ये क्लास खुद चला रहा हूं तो क्या मैं खुद को किराया देता हूं? क्योंकि मैं क्लास को खुद ओन करके चलाता हूं, क्या मैं खुद को सैलरी देता हूं? क्योंकि इस क्लास में मेरा पैसा है तो क्या मैं खुद को इंटरेस्ट देता हूं? क्या नहीं. तो जो इंटरेस्ट मैं खुद को नहीं दे रहा, जो सैलरी मैं खुद को नहीं दे रहा, जो रेंट में खुद को नहीं दे रहा, दैट इज ऑल माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हिच आई हैव लॉस्ट, इज नथिंग बट द इम्प्लिसिट कॉस्ट. मान लो ये जो दवी कॉम्प्लेक्स का ये फ्लोर है, ये मैंने खरीद के रखा है, क्योंकि मैं खुद की क्लासेस चला रहा हूं तो मैं खुद को रेंट दूंगा क्या? नहीं. अगर मैं यहां क्लास नहीं करता तो मैं किसी और क्लासेस को ये रेंट पर देता, और किसी और क्लासेस को रेंट पे देता तो लेट से साल का मुझे 3 लाख रुपए रेंट आता. Because I am utilizing these premises for my own class, I have lost an opportunity of earning the rent of 3 lakh rupees. I have lost an opportunity of earning 3 lakh rupees. क्योंकि मैंने रिसोर्सेस मेरे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सारे इस बिजनेस में लगा दिए. I have lost an opportunity of earning 1.8 lakh.
इंटरेस्ट, 12 lakhs ऑफ सैलरी एंड 3 लाख रुपीज ऑफ रेंट. तो कितना हुआ ये 16.8 lakh. So 16.8 lakh is the reward or is the opportunity I have lost for earning because I have utilized my resources for starting these classes. So this is my implicit cost. 16.8 क्या है मेरा implicit cost. ठीक है. अब अकाउंट्स के हिसाब से देखो, लेट्स से अकाउंट्स के हिसाब से मेरी फीस आई है 20 लाख रुपीस. मेरी फीस आई है 20 लाख रुपीस अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से. टोटल रेवेन्यू इज 20 लाख रुपीस एंड टोटल कॉस्ट आई हैव इनकर्ड इज 10 लाख रुपीस. सो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना है? बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? 10 लाख. लेकिन अगर मैं ये कुछ भी क्लास नहीं करता तो फिर मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता था? 16.8 लाख रुपीस. इकोनॉमिक सेज देयर शुड बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. इकोनॉमिक्स क्या कहता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड, एंड इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस लिमिटेड रिसोर्सेस प्रॉपरली. अब मैं यहां पर क्लास नहीं भी लेता तो मुझे कितना इनकम हो सकता था? 16.8 लाख. क्योंकि मैंने क्लासेस लेने का निर्णय लिया है, सारे रिसोर्सेस को मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो इस वजह से मेरा जो प्रॉफिट आया 10 लाख. बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, लेकिन आई हैव लॉस्ट अ अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग 16.8 लाख रुपीस. सो इकोनॉमिक्स वाइज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से जब मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट 10 लाख रुपए दिखता है तो क्या लगेगा किसी को भी कि मेरा बिजनेस अच्छा कर रहा है, मेरा बिजनेस क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है. लेकिन जब मैं इकोनॉमिक्स के एंगल से समझूंगा तो मैं इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके 16.8 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमा सकता था. 16.8 लाख का प्रॉफिट कमा सकता था, लेकिन मैं कितना कमा रहा हूं? 10 लाख. So have I made the correct utilization of resources? So this decision of starting the class, is it economically right or economically wrong? Economically right or economically wrong? Economically wrong. Economic profit क्या बोलता है? Economic profit is equal to total revenue minus total cost. So total cost is equal to implicit cost plus explicit cost. Total revenue 20 lakh. टोटल रेवेन्यू 20 लाख माइनस 10 प्लस 16.8. लॉस दिख रहा है मेरे को. इकोनॉमिक्स के हिसाब से 6.8 लाख रुपीस का लॉस है. इकोनॉमिक्स के मुताबिक 6.8 लाख रुपीस का लॉस है, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है. क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? वी विल ऑल्सो कंसिडर द इम्प्लिसिट कॉस्ट. लेट्स से द टोटल रेवेन्यू ऑफ क्लास इज 50 लाख रुपीस. The total revenue of class is 50 lakh rupees and the expenses I have incurred is 20 lakh rupees. So as per books of account, my business shows a profit of 30 lakh rupees. Yes or no? My business shows a profit of 30 lakh rupees. So accounts के मुताबिक मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, लेकिन क्योंकि मैंने सारे रिसोर्सेस मेरे बिजनेस में इस्तेमाल किए हैं तो मेरे को जो अपॉर्चुनिटी थी वो छोड़ के मैं इसमें आया हूं, तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़कर भी उससे कुछ ज्यादा मिलेगा, तब जाकर मैं कह सकूंगा कि मेरा इकोनॉमिक डिसीजन सही रहा है. मुझे बिना ये सब किए कितना पैसा मिल सकता था? 16.5 लाख, 16.8 लाख. सो माइनस 16.8 लाख विच इज इक्वल टू 13.2 lakhs. नाउ इकोनॉमिक प्रॉफिट इज ऑफ 13.2 लाख. अब जाकर मेरा ये डिसीजन क्लास का इकोनॉमिकली सही है या गलत है? इकोनॉमिकली सही है, क्योंकि मैंने मेरे रिसोर्सेस अगर एफडी में रखे होते, रेंट पे दिया होता और सैलरी किया होता तो मुझे पैसा कितना मिलता? 16.8 लाख. क्योंकि अब जब मैंने उसे यहां पर यूटिलाइज किया है तो मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट भी जनरेट किया है, साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉफिट भी जनरेट किया है. यानी जितना मैं मिल सकता था मुझे उससे ज्यादा मैं मिलाया हूं, तभी जाकर मैं इकोनॉमिकली करेक्ट डिसीजन में आया हूं, बिकॉज आई हैव मेड द करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस. अभी क्लियर? अब इस हिसाब से क्या मैं बोल सकता हूं अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट?
इज अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट? यस, क्योंकि यहां पर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बट कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बट कॉस्ट इंक्लूड्स इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच आर लॉस्ट. अभी ओके, कंसेप्ट समझ में आया? इकोनॉमिक प्रॉफिट अलग कैसे है, अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग कैसे है? क्योंकि इकोनॉमिक्स बोलता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा है. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से देखना है तो सिर्फ किताबी प्रॉफिट मत देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट मत देखो, ये भी देखो जो रिसोर्सेज तुमने बिजनेस में डाले हैं अगर और कहीं इस्तेमाल करते तो वहां पे कितना मुनाफा मिल सकता था. अगर वहां पे मुनाफा ज्यादा मिलता था और बिजनेस में मुनाफा कम है तो आपका डिसीजन गलत है. बिजनेस स्टार्ट करने का, आपका बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन गलत है, जैसे पहले केस में था. लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा है जो पहले मिल सकता था, देन योर बिजनेस डिसीजन कुड हैव बीन करेक्ट. यस और नो? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थ्योरी खत्म करना है, काम को करो मत, सोने दे, घर जाके वर्चुअल देख लेंगे. पूरा थ्योरी है, 10 मिनट का ही टाइम है. प्लीज बी साइलेंट एंड बी पेशेंट. अभी का पूरा ऑब्जेक्टिव में यही पार्ट है, थोड़ा सा टफ था, जो थोड़ा सा हेडेक वाला है, बाकी सब भी नॉर्मल है. चलिए, एज स्टेटेड बाय H.A. Simmons, firms that have satisfying behavior aim at profits that are satisfactory. Aim that profit that are satisfactory. Bill Samuels sales maximization states maximizing of sales is the main objective. As per A. Bill G. Simmons, firms have distinct ownership and management have different utility with respect to profit. As per Williamson model of maximization of managerial utility, shareholders prefer profit, that is declaration of dividend, whereas board of directors aim at retention of profit. Sarrett and March have suggested 4 possible goals of addition of profit, that is production, inventory, sales and market share. ज्यादा बोर नहीं करूंगा, ये इतने सारे बाबा लोग हैं, सबका एक ही बोलना है कि बिजनेस में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है प्रॉफिट मेकिंग. नाउ बी वेरी क्लियर, प्रॉफिट मेकिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, but you are learning economics, you are not learning accounts. So while you are learning economics, your objective of business should be of economic profit, which also includes implicit cost. Are you getting my point? Are you getting my point? Yes or no? Next, social objective. एक बार मेरा बिजनेस सेट हो गया, एक बार मेरा बिजनेस सर्वाइव हो गया, एक बार मेरा बिजनेस एक्सपांड हो गया, प्रॉफिट कमाने लगा, फिर बाद में मैं जिस समाज से कमा रहा हूं उस समाज के लिए भी कुछ करना चाहूंगा. तो वहां पर एंटरप्राइज का एक और ऑब्जेक्टिव सामने आता है कि जिस समाज से कमाते हो उस समाज के लिए कुछ करो. तो यहां पर आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. जिस देश में कमा रहे हो उस देश के लोगों को, हमारे देश के लोगों के लिए कुछ करो. राइट? सो हियर कम्स विद द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ कब जाएगा? जब मैं कुछ कमा रहा हूं. यहां अपने से कमाने के वादे, लोगों का करने कहां जाएंगे? समझ में आया? तो सोशल ऑब्जेक्टिव बाद में आता, पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट होने के बाद आप बड़े व्यक्ति हो तो फिर बाद में आप सोशल ऑब्जेक्टिव. राइट? मुकेश अंबानी आप रिलायंस फाउंडेशन के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करता है. कब करता है? जब वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर चुका है. बिजनेस में पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अटेंड करते हैं, फिर बाद में हम समाज कल्याण का काम करते हैं. सोशल ऑब्जेक्टिव, एंटरप्राइज कैन नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम. हम वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करते. वी लिव इन द सोसाइटी, वी ग्रो इन द सोसाइटी, वी अर्न इन द सोसाइटी. तो सोसाइटी और समाज के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. Right? So enterprise goes in the society, hence it is some responsibility towards the society, which are called as social objectives, which are listed as maintain of supply of good quality of goods. जब मैं इस समाज में रहकर, यहाँ पर रहकर, इन स्टूडेंट्स के बीच में रहकर फीस कमा रहा हूं तो ये मेरी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दूं. नेक्स्ट, अवॉइड प्रॉफिट बाय एंटी सोशल प्रैक्टिसेस. क्योंकि मेरी मोनोपोली है, मैं इंग्लिश अकेला पढ़ाने वाला टीचर हूं, क्योंकि मैथ्स के टीचर हमारे पास है, पूरे इतने सारे इनोवेशन से, इतने सारे टेक्निक्स है, इसका मतलब लूट मार करूं और कितने भी फीस चार्ज करूं, तो ये ऑब्जेक्टिव सही नहीं होगा. देन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सोशल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अपने आप जैसे जैसे क्लास बढ़ रहा है, फैकल्टीज, स्टाफ, मेंबर्स, उनकी संख्या भी बढ़ते जा रही है. जैसे क्लास बढ़ रहा है, हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वहां का यहाँ लाया तो स्टाफ बढ़ा दिया. जैसे जैसे काम चले से कोमल मैम, ऐसे और नए नए अपॉर्चुनिटीज हम ला रहे हैं. सोशल ऑब्जेक्टिव में ये भी होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. काम करते वक्त और बिजनेस करते वक्त हमें कहीं पर भी पर्यावरण को जो है हानि नहीं पहुंचानी है. स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन. नहीं तो बहुत बार देखते हैं ना, आप न्यूज भी सुनते हो, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है और उनका वेस्ट गंगा में, नदी में बहाया जा रहा है.
जंगल काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को खराब किया जा रहा है, पोल्यूट किया जा रहा है. दैट शुड नॉट हैपन बिकॉज दैट विल अगेन हिट द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. एक और ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. जो व्यक्ति आपके बिजनेस में आपके लिए दिन रात काम कर रहा है, जिसके भरोसे आप चल रहे हो, उसके प्रति भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. जैसे देशपांडे सर, नवीन सर, बाकी फैकल्टीज जो मेरे साथ मेरे बिजनेस में मेरा साथ निभा रहे हैं, मेरे कंधे को कंधे लेकर मेरी मेहनत ले रहे हैं, राइट, इनके प्रति भी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. सो दैट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. आज आईटी कंपनीज इतनी बड़ी है, लेकिन किसके भरोसे? इंजीनियर्स के. किनके भरोसे? इंजीनियर्स के. डोंट यू थिंक दैट आईटी कंपनी होल्ड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दोज इंजीनियर्स? यस और नो? So that is studied under the human objective. This particular objective talks about human resource of an enterprise, steps for HR, fair deal of employees at all levels. ऐसा नहीं है 10,000 की पगार दो और उससे 50,000 का काम करो. That would be a unfair deal. पेमेंट इतना और काम इतना सारा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनफेयर डील. हर व्यक्ति को उसके काम के मुताबिक तय रिवॉर्ड, एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिलना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी एंड स्किल्स. एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉय में नए नए स्किल्स डेवलप करे, उनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स अरेंज करे. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग. लेट्स से मुझे कोई बिजनेस डिसीजन लेना है, मैं अकेले डिसीजन लेता जा रहा हूं, मेरे साथ में काम करने वाले को वर्कर्स का मैं कोई भी पूछताछ नहीं कर रहा, अपने मन से ही सब चीजें डिजाइन कर रहा हूं. डू यू थिंक द ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क अप टू अ लेवल? नो. अगर बिजनेस को बड़े आराम से स्मूथली अगर चलाना है तो मुझे हर व्यक्ति की राय ठीक तरह से लेनी होगी, क्योंकि बिना किसी की राय लिया मैं मेरे मन के हिसाब से कारोबार चला रहा हूं तो बिजनेस ऐसे चलता नहीं. राइट. अल्टीमेटली मुझे हर किसी की राय लेकर ही आगे चलना है. नेक्स्ट, मेकिंग जॉब मोर इंटरेस्टिंग. जॉब को अगर मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा तब हर कोई अपने जॉब में परफेक्शन देगा, और परफेक्शन देगा तो अपने आप बिजनेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. अगर आप देखो जितने भी बड़े आईटी कंपनीज है वो अपने ऑफिस बिल्डिंग में ही बहुत सारे एम्यूनिटीज देते हैं. जैसे इन्फोसिस वगैरह जितने भी बड़े आईटी कंपनीज है उनके ऑफिस के अंदर ही स्विमिंग पूल है, कैफेटेरिया है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है. ये सारे सुविधाएं उनको उनके ऑफिस में ही दी जा रही है, ताकि दिन भर वो कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद जब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता तो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत करके मूड रिफ्रेश कर वो वापस आकर बैठ सके. राइट. सो इस तरह का कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जॉब को करना चाहिए जहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. नेक्स्ट, अब बिजनेस में जितने जितने चीजें हैं उन सभी का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं. सर्वाइवल देख चुके, प्रॉफिट देख चुके, प्रॉफिट होने के बाद हम समाज का सोच चुके, समाज का सोचने के बाद हम वर्कर्स का सोच चुके, अब देश का भी सोचना पड़ेगा. जिस थाली में खाते हैं वहां तो छेद नहीं कर सकते. प्रॉफिट कमा रहा हूं इंडिया में, पैसा भेज रहा हूं पाकिस्तान में, ऐसा चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं. ऐसा होगा क्या? नहीं. दैट मीन्स आई ऑल्सो होल्ड सम ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स माई नेशन. आई होल्ड अगेन सम ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स माई नेशन, जिसे हम कहते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव. फेयर अपॉर्चुनिटी टू फॉर ऑल टू वर्क एंड प्रोग्रेस. मेरे देश में मैं अगर काम करता हूं तो मुझे हर किसी को काम करने की आजादी देनी चाहिए, क्योंकि मेरा बिजनेस बढ़े इसलिए दूसरों का बिजनेस बर्बाद करूं, यह मानसिकता सही नहीं है. नेक्स्ट, प्रोड्यूस एज पर द नेशन प्रैक्टिसेस प्रायोरिटीज. देश की जो जरूरत है आज के डेट में, कोविड में जो देश में जरूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्शन करो, उसके हिसाब से देश की रिसोर्सेज यूज करो. देश में कोविड की महामारी चल रही है, कोई रिसोर्सेज इस्तेमाल करके अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है. इज दिस प्रोडक्शन एज पर द नेशंस प्रायोरिटी? नो. ऐसा कोई करता नहीं है, हर कोई प्रॉफिट के हिसाब से करता है, लेकिन है थ्योरी में तो पढ़ना है. हेल्प इन मेकिंग द नेशन सेल्फ डेवलपमेंट. आत्मनिर्भर भारत मोदी जी क्यों बोलते हैं? ये कब होगा? जब हम हर एंटरप्रेन्योर ऐसी चीजें प्रोड्यूस करेंगे जो कि एक आत्मनिर्भर भारत की ओर चलते हैं. नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? क्वालिटेटिव ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ. Quantitative growth can be seen with the growth in the GDP, but qualitative growth can be achieved. Qualitative growth can be achieved. Qualitative growth can be achieved only with development or improvement in the standard of life of the people. Yes or no? Right? So, देखो, ये देखो, इतना सुनो मेरी बात. अरे वो आंखों पे मास्क लगाना, कंधे पे बैग लगाना सब बंद करो, क्योंकि इतना पढ़ना तो मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कल से मुझे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाना है. ये थ्योरी मुझे भी बोर होती है लेकिन कंप्लीट करना है. यस. सो दीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. यस, प्लीज पे अटेंशन.
देखो जितना तुम टाइम पास करोगे, मेरे को 5 मिनट में खत्म करना है, तुम टाइम पास करोगे मैं और 15 मिनट लूंगा, मेरी कोई दिक्कत, मैं पढ़ाई बगैर छोड़ने वाला नहीं हूं। हाँ सो देखो, यस नवीन सर लाइट टाका मागचे दोनों भी। हाँ तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्राइज के हिसाब से, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अपने डिसीजंस लेता है, लेकिन ये डिसीजन लेते वक्त कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें हमारे बिजनेस में फेस करने पड़ते हैं। जब हम एंटरप्रेन्योर समझ चुके, एंटरप्रेन्योर के फंक्शन समझ चुके, एंटरप्रेन्योर अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करते वक्त अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से, अलग अलग ऑब्जेक्टिव जैसे कि ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, सोशल, नेशनल, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखते हुए जब निर्णय लेता है, फंक्शंस डिस्चार्ज करता है, साथ ही साथ हर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स या कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। क्या हर बिजनेस में सिर्फ परफेक्शन होता है क्या? नहीं, उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आते हैं, उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आते हैं। सो एवरी बिजनेस हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड कंस्ट्रेंट्स। जैसे कि सारे कोचिंग के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आया कि पैंडेमिक में आप ऑफलाइन क्लास नहीं होंगे, तो इस ऑनलाइन मोड को, नए मोड को एडॉप्ट करके स्टूडेंट्स को इसके लिए एग्री कैसे करवाना, राइट? So these are constraints and problems which everyone faced during the COVID pandemic and during the lockdown. Yes or no? Right? Now let's look into commonly what are the different constraints and problems a business enterprise has. पहला point, constraints in achieving the economic objectives. ये जितने economic objective मैं बोला हूँ, organic, economics, social, national, human, ये सभी objectives achieve करते वक्त enterprise के सामने क्या क्या constraints या क्या क्या limitations आते हैं। पहला point है lack of knowledge and information. Let's say now there is a constraint due to lockdown where there are no offline classes. If I don't have adequate knowledge and information as to how to run the online classes, would I have been that okay and up to this particular level where I have this many admissions, right? अगर मेरे पास knowledge ही नहीं होता, जैसे कि आज परभनी में मैक्सिमम क्लासेस को समझ में ही नहीं आया कि ऑनलाइन मोड में किस तरह से ठीक से क्लासेस चलाए। सेम इज हैपनिंग विद दिस बिग इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस। इन लोगों को लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन की वजह से ऑनलाइन मोड को जितने अच्छे तरीके से हम इतने छोटे ऑर्गेनाइजेशन होकर भी इतने अच्छे से ले पाए, ये लोग कैसे पढ़ा रहे थे? देखा है क्या तुमने? एक रजिस्टर पे पेन से लिख रहे, व्हाट्सएप पे ऐसे ऊपर से वीडियो दिखा रहे, सीखा। डीएसएम में, शिवाजी में एक कागज के पेन से पेन पे लिख रहे, ऊपर से ऐसा फोन पकड़ के व्हाट्सएप पे वो चालू है। दिस वॉज ड्यू टू lack of knowledge and information. Next, restriction in public interest. कभी कभार हम हमारे बिजनेस के हिसाब से प्रॉफिट बहुत जाते हैं और प्रॉफिट अटेन करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए हम पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर या फिर किनारा नहीं कर सकते। लेट्स से मास्क और सैनिटाइजर का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत हो रहा है, उस मास्क और सैनिटाइजर को चाइना में बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन चाइना में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मैं मेरे देश के लोगों को खतरे में डाल सकता हूं क्या? नहीं। सो कभी कभार ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी हमें हमारे सामने आते हैं, जैसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी। मैं अगर सोच लूं मुझे 200 का क्लास चलाना है, चला पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इनएडिक्वेसी रहेगी। नेक्स्ट, चेंज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। बदलते दौर के बाद जैसे ऑनलाइन में क्लास बदला, बदलते दौर के साथ जो नए नए कंस्टेंट चैलेंजेस बिजनेस के सामने आए, दोज आर नथिंग बट द चेंज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। फाइनली कमिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एन एंटरप्राइज। ये कंस्टेंट्स में से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम हमारे बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। बहुत बार एंटरप्रेन्योर ये तय नहीं कर पाता कि उसके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो समाज सेवा है या प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है या सर्वाइवल है। कभी कभार हम ऑब्जेक्टिव चूज करने में अगर गलती खा लेते हैं तो हमारे बिजनेस को उसका सेटबैक मिलता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लोकेशन, साइज एंड प्लांट। मुझे परभनी के क्राउड, परभनी के एडमिशंस के हिसाब से यह समझना चाहिए कि मेरे क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं। मैं 500-500 स्टूडेंट्स का क्लासरूम बना के रखता हूं तो उतना एडमिशन मेरे पास आएंगे ही नहीं, तो इतना 500 स्टूडेंट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वेस्ट होगा। हाँ, अगर साइंस की क्लास है तो बात अलग।
कॉमर्स में 500 स्टूडेंट्स अभी के लिए तो नहीं है, आगे चल के हो सकते हैं, इंशाल्लाह जरूर होंगे, राइट। लेकिन अभी के हिसाब से ये 500 का इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेस्ट, राइट। सो प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिसाइडिंग ऑन द लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट। जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा था मैं यही प्रॉब्लम में था कि क्लास स्टार्ट कहां करें। आई सॉ मेनी लोकेशंस, और रॉयल एनफील्ड के बुलेट के ऊपर देखा, फिर बाद में वसमत रोड में देखा, 3-4 लोकेशंस देखे अलग अलग, और फाइनली जाकर ये लोकेशन लिया। ये लोकेशन लेने के बाद भी अच्छा लोकेशन तो है, सब चीजें परफेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन मार्क था, बाजू की पब्लिक देख के स्टूडेंट अगर पहले दिन ही भाग गए तो काकरो काकरो काकरो, ये पहले दिन देख के भाग गए तो। सो ऐसे प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द लोकेशन। लेकिन अल्टीमेटली आई हैड टू टेक अ डिसीजन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि जो रेंट उस एनफील्ड के ऊपर और वहां मिल रहा था उसका 50% रेंट यहां पर है, जो भी है, राइट। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्री में जैसे आपके रिलेशन होते हैं, जैसे और कॉम्पिटिटर्स के आपके साथ रिलेशन कैसे है, उसके हिसाब से आपकी बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगे। क्योंकि मैं एक एक्स क्लास को छोड़कर यहां आया था, तो हम दोनों के बीच में बहुत खींचातानी चल रही थी, बहुत कंपटीशन चल रहा था। सो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन बिजनेस लास्ट ईयर। अल्टीमेटली जैसे धीरे धीरे बैचेस अलग होने लगे, स्टूडेंट्स होने लगे, नाउ माय स्टूडेंट्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट द अर्ली पीपल, नाउ देयर इज लेस ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन अस। नाउ these are depending on the industry relations. Next, problems relating to finance. I wanted to do this expansion, but if I didn't have adequate finance, could I do this? Now these are problems relating to finance. Expansion करना है क्या, लेकिन expansion करने के लिए क्या लगता है, पैसा। फाइनेंस अगर है तो फिर आप एक्सपेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किस व्यक्ति को किस हायरार्की पे बैठाना है ये समझना भी चाहिए। नहीं, प्यून को आप बॉस बना दिए और बॉस को प्यून बना दिए तो। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग। अभी भी क्लासेस का जो बिजनेस चलता है वो मार्केटिंग पे चलता है। आए दिन रास्ते पे जितने बैनर हैं आधे ज्यादा क्लासेस के हैं। किस तरह की मार्केटिंग करना है ये लोगों को समझना है। आज का दौर है, जो बैनर देखता नहीं है वो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे देखता है। मेरी सारी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे है। सो आए दिन मैं रोज सोशल स्टेटस पे कंटिन्यू, मेरे व्हाट्सएप पे ये वो कंटिन्यू स्टेटस चलते रहते हैं, क्योंकि मेरी मार्केटिंग ये डिजिटल मार्केटिंग है। आई डोंट बिलीव इन मोर ऑफ बोर्ड्स एंड बैनर्स एंड फिजिकल मार्केटिंग। सो प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो फेस्ड इन द मार्केटिंग। किस तरह की मार्केटिंग करना है। आफ्टर द रिस्पॉन्स आई हैव, आई एम क्वाइट अश्योर्ड कि डिजिटल मार्केटिंग ही अभी का सदीर है, अभी का दौर है, अभी का डिकेड है, और इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्टिल पीपल से यू आर लैगिंग ऑन मार्केटिंग। अगर आप फिजिकल मार्केटिंग करोगे तो आपके पास ग्रामीण का एडमिशन आएगा। मुझे मालूम है जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह की सुविधाएं मैं देना चाहता हूं, जिस तरह का फीस स्ट्रक्चर है, उतना ग्रामीण में मैक्सिमम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग फिजिकल मार्केटिंग। So there were problems in deciding on what kind of marketing strategy I need to adopt. Next, problems relating to legal formalities. जैसे क्लासेस को जीएसटी का कंप्लायंस करना पड़ता है, तो ऐसे जीएसटी का कंप्लायंस करते हो ऐसे बहुत से लीगल फॉर्मेलिटीज के प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट अहेड आपको भी जाना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये ऑलरेडी अपना ऊपर हो चुका था। कोई पॉइंट है क्या उसमें? है क्या कोई? किरण, एखादा पॉइंट मिस झालाय का? देखो जल्दी, रुको रे। थैंक यू सो मच।